What's up, bachcho? Beta, the chapter which we are going to do today is third level. Third level, which is created by Jack Finney. Beta, the chapter is actually a blend of fiction and reality. In this chapter, actually, the chapter was based in the year 1950 when the Second World War was over. In the chapter, there is a character named Charlie who is 31 years old who actually commutes through bus generally to his office, but that day he decides to take train. He is aware that there are two levels at the New York Grand Central Station, but luckily or unluckily he was able to find another level, that was the third level. Initially, he is going to describe that each and every person, each and every officer on the stations would tell you that there are only two levels, but Charlie himself has been to the third level. So it was really difficult for him to understand that no third level was available. But even Charlie visited the third level only once. Since the day he had visited the third level, he was trying to go there once again, but he couldn't do so. Sorry, he was never able to find the third level again. Okay, bachcho. Uh, in the story, it is also described that one of his friend, his name was Charlie, who was a psychiatrist. He interpreted that no such third level is available. Actually, it is all the creation of Charlie's mind, and he is becoming escapist. Escapist means he's trying to escape from the harsh reality, from the day-to-day life, from the rat race in which every city person is involved. Okay, bachcho? Let's read the story and see what kind of surprises are there in the story for you to understand. The president of the New York Central and the New York New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. Now he is talking about that the officers, the in charges of those stations, would swear on a stack of timetables. On a stack of timetables, beta, why timetables are described? Because timetable is the only source from which we can get the timings of the trains correct. Right now there are so many other options. You can surf on net. आप नेट पे देख सकते हो किस ट्रेन का क्या टाइम है, बट अर्लियर एट दैट टाइम नो सच फैसिलिटी वॉज अवेलेबल. सो द ओनली सोर्स टू अंडरस्टैंड द टाइमिंग्स ऑफ ट्रेन्स वर टाइम टेबल्स. तो वो बोलता है कि टाइम टेबल्स के ऊपर हाथ रख के वो स्वेयर कर सकते हैं कि देर आर ओनली टू लेवल्स, बट आई से देर आर थ्री. अब चार्ली जो है वो ये ही इज़ फर्म एट इज बिलीव दैट देर आर थ्री लेवल्स बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. वो खुद वहाँ पर गया है. यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप. आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स. Now he discussed this incident with many of his friends, and one of those friends was a psychiatrist. He was a close friend of Charlie. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream with fulfillment. उसके फ्रेंड ने क्लियरली उसको ये मना कर दिया कि नो सच लेवल वॉज अवेलेबल इन रियलिटी. एक्चुअली इट वॉज ऑल क्रिएटेड बाई हिज ओन इमेजिनेशन. He said, I was unhappy. I means narrator, Charlie. सैम ने ये डिसीजन दिया कि बिकॉज यू आर अनहैप्पी यू हैव इमेजिन सच थिंग्स विच यू डिज़ायर टू सी, विच यू वॉन्ट टू रिमेन इन, बट एक्चुअली देर इज़ नो सच प्लेस अवेलेबल. दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड. अब एक क्वेश्चन भी है कि वाई शी गॉट मैड. बिकॉज बेटा उसको लगा कि अरे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल विद दिस पर्सन, with her husband, तो ये unhappy क्यों है? But he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. Now Sam told Charlie's wife कि भैया ये domestic life में
अनहैप्पी नहीं है, ही इज़ अनहैप्पी, उसकी फैमिली में कोई इशू नहीं है, ही इज़ अनहैप्पी बिकॉज द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। बेटा वॉर की टेंशन थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज जस्ट फिनिश सम ईयर्स बैक, 2-3-4 years बैक। दूसरा कोल्ड वॉर का भी टेंशन चल रहा था, और बाइपोलर वर्ल्ड था उस टाइम पर, तो अमेरिकन को ज़्यादा खतरा रहता था। वेल, हु डजेंट, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वो कहता है और लोगों को भी तो है ये टेंशन, वो तो नहीं जाते कहीं पर भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर, मैं ही क्यों पूछा। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, एवरीथिंग क्या पॉइंट्स टू इट, दैट ही बिलीव्स इन थर्ड लेवल। इस चीज़ को क्या पॉइंट करता है, उसके साथ में उन्होंने एक बात और बोली, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। उसके फ्रेंड्स ने बोला कि देखो तुम्हारी तो हॉबी ऐसी है स्टैम्प कलेक्टिंग की, उसमें उसका मतलब भी क्या है, उसका मतलब ये है यू नीड अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। स्टैम्प कलेक्टिंग की हॉबी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिलेटली। वेल मे बी, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Now he put forward his own point कि अगर चलो मेरे को टेंशन है, but my grandfather he too had the same hobby, उनको क्यों नहीं थी प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो उनको प्रॉब्लम तो नहीं थी, फिर उनको क्यों है ये हॉबी, उनके टाइम में तो लाइफ बड़ी स्मूथ थी, थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल एट दैट टाइम इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। अब वो बोलता है कि मेरी कलेक्शन जो थी इट वॉज स्टार्टेड बाय माई ग्रैंड फादर। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। यूएस इशू बेटा मतलब यूएस की जो भी स्टैम्प्स इशू होती थी, पोस्टल स्टैम्प्स, तो जो ये कलेक्टर्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट डे इशू को अपने पास रखते हैं। अब फर्स्ट डे इशू क्या होता है, फर्स्ट डे इशू होता है बेटा जैसे कोई स्टैम्प रिलीज़ हुई, सपोज करो आज फर्स्ट डे रिलीज़ हुई, तो उन्होंने क्या करा, एक एनवेलप लिया, उस पर वो स्टैम्प फिक्स करी, अपना एड्रेस लिया, अपना एड्रेस उस पर पेस्ट किया, लिख दिया पूरा, उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर डाला और उसको स्टैम्प लगवा कर पोस्ट कर दिया। सो इट वॉज अ प्रूफ दैट दिस स्टैम्प बिलोंग्स टू द फर्स्ट डे कवर, मतलब फर्स्ट डे इशू है ये, क्योंकि डेट जो थी वो स्टैम्प से लगती थी, और स्टैम्प होती थी पोस्टल स्टैम्प। पोस्टल स्टैम्प के ऊपर जो दूसरी स्टैम्प होती है वो लगा देते थे जिसमें डेट मेंशन होती थी, और फिर वो उसको कलेक्शन में रख लेते थे। ये होती थी फर्स्ट डे इशू। Anyway, here is what happened at Grand Central Station. Now he is describing which strange experience he had that night rather. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment. So I decided to take the subway. देखो बेटा डाउनटाउन और अपटाउन, डाउनटाउन के एरिया का मार्केट वार्केट जहाँ पर ज़्यादा है प्लेसेस, ठीक है। I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. Usually he commutes in a bus, but now that day he wants to reach faster, so he decided to take the train rather than a bus. ठीक है। Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie. Why he's saying that he's an ordinary guy? Because the story is based on the life of common man, ordinary guy, डेली जो मिडिल क्लास होता है, ठीक है, तो मिडिल क्लास की स्टोरी है। 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. गैबार्डीन सूट क्या है बेटा, थोड़ा सा वूलन उसके अंदर, मतलब वार्म सूट आप कह सकते हो। अब आप कहोगे समर में वार्म कैसे है बेटा, समर में भी वहाँ का जो न्यूयॉर्क का टेम्परेचर था उस टाइम पर वो जनरली ऐसा था जैसे हमारे यहाँ पर फेब में होता है। ओके, एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी, हु लुक जस्ट लाइक हिम, मतलब वो भी उसके जैसे थे, वो भी डेली जो ऑफिस गोअर्स थे वो थे, मिडिल क्लास वाले लोग, सेम वही तरह का अटायर पहना हुआ, वही हैंड बैग लिया हुआ है सबने, ऑफिस गोअर्स हैं सारे। I passed a dozen men who looked just like me and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. उसकी वाइफ का नाम है लुइसा, ठीक है बच्चों। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue
and went down the steps to the first level. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Vanderbilt Avenue से Grand Central के अंदर उसने turn किया. The steps to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from. Second level से कौन सी जाती थी? Suburban trains. Ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. वहाँ जाके सेकेंड लेवल के बाद जो आर्च डोरवे था वहाँ जाके वो रास्ता भटक गया. नाउ दिस वाज नॉट सम यूनिक थिंग. ही हैड forgotten his way at Grand Central Station many times. ठीक है, उसके लिए वो आपको रीज़न देगा ऐसा क्यों होता है. That is easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. आज भी बेटा अगर आप मेट्रो में जाओगे, स्पेशली इन दिल्ली, अगर आप राजीव चौक वाला मेट्रो स्टेशन देखोगे तो देर आर वेरियस काइंड ऑफ मेट्रो ट्रेन्स मूविंग टुवर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन इन द सिटी. तो वहाँ जब आप सबवे में जाते हो नीचे तो यू गेट कन्फ्यूज कि किस साइड जाना है. Same thing happened with him. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. Another time, I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. Now, you need to remember all these places because in the new format, in the MCQ format, these places can be ours. So, इनको आपको learn करना है सबको. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. There is another question, वो ऐसा क्यों सोचता है that Grand Central is growing like a tree? Pushing out new corridors and staircase like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. On its way to Times Square and maybe another to Central Park. And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. Now these are his feelings. अब उसको लगता है कि यार ये ग्रैंड सेंट्रल तो ऐसा लगता है ऐसे ग्रो कर रहा हो. बिकॉज देर आर वेरियस वेज अंडरग्राउंड, आपको पता नहीं चलता. समटाइम्स you lose your way and you get out of various places, you get out from various places in the city because वो इतने ज़्यादा उसके अंदर रास्ते हैं, you get confused. तो वो एग्जाम्पल्स दे रहा है, कई बार ऐसा हुआ. बट ही नेवर रिवील्ड दिस थिंग in front of his psychiatrist friend. Okay बच्चों, the corridor I was in began angling left and slanting downward and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my footsteps and I didn't pass a soul. Now he kept moving downwards. चलता जा रहा था. कोई there was no sound, there was no person available in front of him. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space. Now he realized that there is some open space because जो sound था वहाँ का वो echo हो रहा था, ठीक है? And people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the 3rd level at Grand Central Station. For just a moment I thought I was back on the 2nd level. Now the experience was quite unique because he was completely unaware where he was. अब उसके सामने सीन आएगा वो और भी ज़्यादा startling होगा, और भी ज़्यादा shocking होगा. For just a moment I thought I was back on the 2nd level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering. इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थे बेटा, लैम्प्स थे वो केरोसिन वाले, इसलिए वो फ्लिकर कर रही थी लाइट. देन आई सो वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. अब वो क्या थी? ओपन फ्लेम गैस लाइट्स. दोज वर नॉट इलेक्ट्रिसिटी bulbs.
देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। ब्रास स्पिटून्स, ब्रास इज अ मेटल, उसके स्पिटून्स, स्पिटून्स मीन्स टू स्पिट इनटू, जिसके अंदर कोई स्पिट करना हो तो वो स्पिटून्स के अंदर करे, वो रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। ऐसे करके उसने अपनी पॉकेट निकाली, उसका जो कवर था वो हटाया और टाइम देखा और फिर रख दिया, ठीक है। विच वॉज नॉट कॉमन इन द ईयर when where Charlie was actually living. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels. Lapels बेटा ऐसे होते हैं ना कॉलर के जो कवर से होते हैं ऐसे, वो. And he had a big black handlebar moustache. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. The kind of dress up, the kind of features, the kind of हेयर स्टाइल्स, द काइंड ऑफ बियर्ड्स, द काइंड ऑफ मूस्टेचेस, वो सब वो थी विच पीपल यूज टू वेयर इन 1890s और समथिंग. I never saw so many beards, sideburns, and fancy moustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive. जो इंजन खड़ा हुआ था वो उसने देखा. A very small courier and eyes locomotive with a funnel shaped stack. वो बेटा steam locomotive था. And then I knew, to make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper. अब सबसे ज़्यादा जो श्योरिटी उसको आई वो आई थी न्यूज़पेपर देखने के बाद. It was the World. The World. The name of the newspaper was The World. ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा एमसीक्यू में. And the World hasn't been published for years. The lead story said something about President Cleveland. किसके बारे में थी लीड स्टोरी? प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में, the then president of USA. I have found that front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. I turned down the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go in the year 1894. अब उसे लगा कि यार 1894 है, अब यहाँ पर तो मेरी पॉकेट में इस टाइम इतने पैसे हैं कि मैं पूरे यूएस में कहीं पे भी चला जाऊँ, मैं भी और लुइसा भी, दोनों कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं. विदाउट रियलाइजिंग दैट दैट करेंसी वुड नॉट वर्क इन 1894. एंड आई वॉन्टेड 2 tickets टू गेल्सबर्ग इलिनॉय. अब बेटा ये गेल्सबर्ग इलिनॉय जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? गेल्सबर्ग इलिनॉय ये एरिया है अमेरिका में, जगह है एक्चुअली. अब गेल्सबर्ग को इतना अच्छा ब्यूटीफुल, इतना अच्छा डिस्क्राइब कैसे किया है और गेल्सबर्ग में वो जाना क्यों चाहता है? बिकॉज जो हमारा स्टोरी का जो राइटर है ना, जो ऑथर है, ही हिमसेल्फ वॉज ग्रेजुएटेड इन गेल्सबर्ग, ठीक है. तो कहीं ना कहीं उसकी भी इंटेंशन गेल्सबर्ग से रिलेटेड उसकी भी कुछ फॉन्ड मेमोरीज हैं which he has created through this story. Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around. अब जो उसने डिस्क्राइब किया है गेल्सबर्ग का, एक ऐसा एरिया डिस्क्राइब किया है जो सपोज करो सब अर्बन एरिया है, रूरल एरिया है, पीपल आर सो क्लोज विद ईच अदर, पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर वेरी ऑफन. जैसे आप विलेजेस में देखोगे ना, एवरीबडी नोज एवरीबडी. एंड इन सिटीज़ देर आर हार्डली पीपल इन द सेम बिल्डिंग हु टॉक टू ईच अदर, ठीक है बेटा. तो ये वो दिखाना चाह रहा है. बीइंग अ सिटी बॉय राइट नाउ ही इज लिविंग इन न्यूयॉर्क वेयर लाइफ इज एक्चुअली सेल्फ सेंटर्ड, वेयर द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग इज मोनोटोनस. यहाँ पर अलग है, यहाँ पर क्या है, सबका एक दूसरे से इंट्रैक्शन है, दे टॉक टू ईच अदर, दे शेयर देयर जॉयज एंड सोरोज विद ईच अदर. तो यही उसके अंदर एक फोन मेमोरीज, यही चीज़ थी जो उसको एस्केपिस्ट बना रही थी, ठीक है बच्चों. तो ये डिस्क्रिप्शन दिया है उसने गेल्सबर्ग का.
क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में गिल्सबर्ग को कैसे डिस्क्राइब किया है, एग्जैक्ट आंसर ये आपका लिखा हुआ है. In a peaceful world, to be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. अब वो गिल्सबर्ग जाना चाहता है और वो कहता है कि अभी वर्ल्ड वॉर तो बहुत दूर है, 20 ईयर्स है, और वर्ल्ड वॉर 2 40 ईयर्स के बाद आएगी, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ फिलहाल 1894 में गिल्सबर्ग. ठीक है बच्चों. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare. And I had enough for 2 coach tickets one way. अच्छे खासे पैसे थे कि पूरे 2 कोच के टिकट ले लूँ मैं. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That's ain't money, mister. उसने बोला, अरे ये क्या दिखा रहा है भाई, ये तो मनी नहीं है. Because he was not aware of the modern currency which was not prevalent in his time. तो उसके लिए तो बड़ी स्ट्रेंज थी. उसने कहा ये तो मनी नहीं है, क्या दिखा रहा है भाई. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार. और अगर मेरे को इफ़ यू ट्राई टू बी फूल मी बेटा बंद करवा दूंगा, पकड़े जाओगे तुम. एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम. उसने अपने पास कैश ड्रॉअर को देखा. ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, half again as big as the money we use nowadays. पुरानी मनी थी, बड़े बड़े नोट्स थे, and different looking और बिल्कुल अलग थी. I turned away and got out fast. Why did he do so? Because उसे पता था कि बेटा अगर इसने पकड़ लिया तो जेल में चला जाऊंगा, और जेल तो 1894 में भी बेकार ही थी और आज भी बेकार ही है, और आज भी बेकार ही है. And that was that. I left the same way I came. अब वो वहाँ से तुरंत वापस भाग गया. I suppose. Next day during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend. उसके पास जितने पैसे थे ना बैंक बैलेंस में $300 थे, उसने सबको वापस देकर ओल्ड करेंसी से करेंसी एक्सचेंज वाले से जाकर ओल्ड करेंसी ले ली, 1894 वाली करेंसी ले ली. और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी हुई सैम को. क्यों हुई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को सबसे ज़्यादा परेशानी? बिकॉज अब उसको लगा कि ही was so interwoven with his imagination that it would be really difficult for him to understand that the level was not actually there. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style bills, but I didn't care. अब उसने $300 दिए and he received less than 200. But he was happy, he was satisfied, because even that amount was really so valuable in 1894. Prices difference बहुत ज़्यादा था. ठीक है बच्चों, in 1894. But I have never again, अच्छा एक चीज़ रह गई, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. Eggs का प्राइस क्या था? 13 cents a dozen. 13 cents means $1 से भी बहुत कम. जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ऐसे ही $1 में 100 सेंट्स. तो उस 13 सेंट्स में आप सोचो 1 डजन एग्स का रेट है, तो बाकी चीज़ों का भी कम ही होगा ऑब्वियसली. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd level at Grand Central Station. Although I have tried often enough. In spite of trying so hard, in spite of trying so many times, he was unable to find the 3rd level. Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level anymore. Louisa को बुरा लगता था. क्यों देख रहे हो, बेकार है वहाँ जाना, तुम्हारे को कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, इशू हो जाएगी. So she was worried. Being a wife, she was worried for her husband's health. And after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we are both looking. अब देखो बेटा, एकदम चेंज हुआ सीन. लुइसा मना कर रही थी, अगली लाइन में वो कह रहा है कुछ दिनों बाद मैं और लुइसा दोनों ही ढूंढ रहे हैं. क्यों ढूंढ रहे हैं, रीज़न क्या है ये देखेंगे. लुइसा इतनी समझदार, जो इनफैक्ट उसको मना करती थी, वो भी ढूंढ रही है अब 3rd level. क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द 3rd level इज स्टिल देयर. माई फ्रेंड सैम वाइनर disappeared. Nobody knew where. But I sort of suspect. सैम वही है बेटा, उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, अब ये गायब हो गया. But I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg
I went to school there and he always said he liked the sound of the place. देखो बच्चों, सैम जो है वो सिटी बॉय है. सिटी बॉय यानी he too is living in a city, and living in a city is really difficult, is really full of efforts, mental pressure, rush, rat race. There are so many issues in the life of a city dweller. जो रूरल में रहने वाले होते हैं, जो सबर्बन में रहने वाले होते हैं, उनकी लाइफ इज़ कंपैरेटिवली पीसफुल देन द पीपल लिविंग इन सिटी. तो ये बोल रहा है सैम भी एक सिटी बॉय है और उसको मैं गिल्सबर्ग के बारे में बताता था, एंड ही टू लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस बेटा, इसका मतलब ये है कि उसको भी अच्छा लगता था उसके बारे में जानना. एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894. अब उसे कैसे पता चला वो 1894 में है? बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? अब मैंने आपको बेटा भी समझाया था फर्स्ट डे कवर होता है, फिर से बता देता हूँ. When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. The envelope is called a first day cover. They are never opened. They just put blank paper in the envelope. बस वो एक प्रूफ होता है, एक उनकी कलेक्शन के अंदर एक इकट्ठा हो जाता है, कलेक्शन का एक पार्ट बन जाता है. That night among my oldest first day covers, I found one that shouldn't have been there. अब उसको एक फर्स्ट डे कवर वहाँ पर मिलता है which he never expected that he would find there, but there it was. It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That is what the address on the envelope said, and it had been there since July 1894. तब से यहाँ पर रखा हुआ है. The postmark showed that, yet I didn't remember it at all. The stamp was a 6-cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. अब उसके अंदर देखो जनरली क्या होता है, मैंने बताया था फर्स्ट डे कवर में क्या होता है, ब्लैंक पेपर होता है, क्योंकि जो सेंडर है वो खुद अपनी एड्रेस पे भेज रहा है एंड ही इज़ अवेयर दैट इट कंटेन्स नथिंग बट अ ब्लैंक पेपर. बट उसके अंदर जो था उस वाले एडिशन उसमें इशू में जो था उसके अंदर एक लेटर था. क्या था? चार्ली, आई गोट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गोट टू बिलीविंग यू वर राइट, एंड चार्ली, इट्स ट्रू. I found the third level. I've been here 2 weeks, and right now, down the street at the Deafy, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing Nelly Home. And I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. ठीक है बच्चों. The note is signed Sam. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800, which confirmed that he too has found the third level and left for it. Worth of old style currency that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. वो जो उसने चार्ली ने क्या करा, वहाँ पर एक हे और ग्रेन का बिजनेस शुरू कर लिया. क्यों कर लिया? He always said that is what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business. Old business यानी वो वहाँ पर साइकेट्रिस्ट का काम तो कर नहीं सकता, because at that time no psychiatrist services were required. Nobody was depressed. Nobody had any kind of psychological illness. Not in Galesburg, Illinois. In 1894, his old business. Why? Sam was my friend. Sam was my psychiatrist. यही उसका फ्रेंड था और यही साइकेट्रिस्ट था. आई होप स्टोरी आपको समझ में आई होगी बच्चों. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड विद द स्टोरी, और इफ़ यू फाइंड एनी अदर क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन विच आई एम गोना शेयर विद यू, इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड एक बात और, नाउ do you believe that the story is actually in the story actually was there any third level? आपको क्या लगता है, ये भी आप अपना कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं.
अब ये आपके परसेप्शन के ऊपर है दैट यू बिलीव दैट एक्चुअली थर्ड लेवल वाज अवेलेबल. ये सिर्फ ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे देर आर सम पीपल हु बिलीव इन घोस्ट वाइल देर आर सम पीपल हु डू नॉट बिलीव इन देम. सुपर नेचुरल की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते. ठीक है बच्चों. अब ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको. मेरा परसेप्शन आप पूछोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के पूछना. आई विल डेफिनेटली आंसर दैट क्वेश्चन. ओके बच्चों. नाउ there are some important questions apart from the NCERT question. Let's do all these questions. First is, what experience did Charlie go through at the Grand Central Station? क्या एक्सपीरियंस किया उसने देखा वहाँ पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, लाइट्स डिफरेंट है, ड्रेस स्टाइल डिफरेंट है, लोगों का लोकोमोटिव बिल्कुल अलग था, न्यूज़पेपर स्टोर अलग था, टिकट विंडो पे क्लर्क का जो नोट्स थे वो अलग थे. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच ही नोटिस विच वर स्ट्रेंज फॉर हिम. What did Charlie see at the third level? ये सब वही डिस्क्राइब करना है. Why did Charlie and his wife together look for the third level? Because when they got the letter of Sam, they believed, even Louisa started believing that there was actually third level. So वो ढूंढने लगे हर वीकेंड पर. What was the proof that Charlie believed there was a third level? First, he himself has been there according to him. Second, उसको लगता है कि सैम वहाँ पे चला गया. अब बेटा मैं आपको अपना परसेप्शन बताता हूँ. आपको लगेगा कि अगर सैम वहाँ पर नहीं गया तो उसने लेटर कैसे डाला. बेटा सैम वॉज इज वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स. ही हैज़ एक्सेस टू हिज हाउस. हो सकता है कभी उसने जोकिंगली वहाँ पर प्लेस कर दिया वो लेटर. एंड ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट. ही वॉज वेरी मच अवेयर हाउ टू प्ले विथ पीपल्स माइंड. वो ये जानता था तो ही कुड डू सो. दूसरा हो सकता है वो चार्ली को रियलाइजेशन करवाने के लिए कर रहा हो. और आफ्टर सम टाइम एक्स्ट्रापोलेशन डिपेंड करता है बेटा. आप स्टोरी को एक्स्ट्रापोलेट कैसे कर सकते हो अपने वे में, बट it should be meaningful, it should be logical. ठीक है. your points need to be valid. next है, why did Charlie and Sam fancy about the third level and going to Galesburg? बेटा वही दोनों ही सिटी बॉय थे. गेल्सबर्ग में लाइफ बड़ी पीसफुल थी, सिटी में बड़ी ज़्यादा फास्ट थी, इश्यूज़ थी बहुत ज़्यादा, जितने भी तरीके की सिटी लाइफ से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, which were not there in Galesburg. People were so friendly, people used to talk together, people knew each and every buddy around them. Why did Sam's interpretation upset Charlie's wife? When Sam said that all this believing of third level thing is nothing but escaping from reality, because he was not happy. So लुइसा को लगता है अरे ये हैप्पी क्यों नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेल विद आवर लाइफ, वाई इजंट ही हैप्पी. तो फिर सैम उसको स्पेसिफाई करने के लिए बताता है कि मैं ये नहीं कह रहा, देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन योर मैरिड लाइफ और इन योर डोमेस्टिक लाइफ, बट द प्रॉब्लम्स विद विच ही वॉज एसोसिएटेड ड्यूरिंग द सिटी लाइफ, उसकी वजह से प्रॉब्लम है. What is the first day cover, which we have already discussed? What made the ticket clerk think that Charlie was trying to skin him? Because the kind of notes he presented in front of him were different and unknown to him. तो उसको लगा कि कुछ गड़बड़ है. Why did Charlie rush back from the third level? Because of fear of being jailed. कि अगर यहाँ पर पकड़ा जाऊँगा तो जेल तो 1894 में भी अच्छी नहीं थी. ओके बच्चों. Why did Charlie rush back? ये हो गया था. How did Charlie realize that he was standing in the year 1894? ये जब उसने चेंजेस देखे, और कंफर्मेशन कब मिला, जब उसने वो न्यूज़पेपर पर डेट देखी. ठीक है. प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा हुआ था. समथिंग वाज रिटन अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग इलिनॉय? कैसे डिस्क्राइब करता है वो मैंने आपको पैराग्राफ में दिखाया था, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है. Was there a third level? It really depends on you, but actually logically there was no third level available in the story. It was all created by Charlie's imagination because of the fear and insecurity of living in a city where life is fast, life is monotonous, life is full of sufferings, nothing else. Because we believe only in those things which are proven scientifically बाय विद फैक्ट्स, और अभी तक साइंटिफिकली ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है. ठीक है बच्चों. अब नेट पे देखोगे तो ऐसी नई नई चीज़ें आएंगी कि वो आदमी
2050 से आ गया यहाँ पर, उसने प्रेडिक्शन दे दी, तो वो सब गलत है. द फैक्ट दैट सैम हैज़ मूव टू द थर्ड लेवल इज़ आयरोनिकल. वाई आयरोनिकल क्यों है बच्चों? आयरोनिकल इसलिए है बिकॉज Sam was a psychiatrist and he constantly tried to prove that there was no third level available, and still he moved to the third level according to his letter. तो ये irony है. Irony is a form of humor or an indirect way of conveying meaning. Why did Charlie what did Charlie do to make his life easier in 1894? वो ओल्ड करेंसी एक्सचेंज करवा लेता है. अपना जो बैंक अकाउंट में देयर वर ओनली $300 अवेलेबल एंड ही एक्सचेंज दोज $300 इनटू the currency of 1894, which was less than 200, but still it was a handsome amount at that time. How did Charlie defend himself from being accused as an escapist? जब उसके फ्रेंड और जो उसका साइकेट्रिस्ट है वो बोलता है कि ये जो आपका जो एक हॉबी है ना फिलेटली की, ये भी इस पॉइंट को प्रूव करती है कि आप एक एस्केपिस्ट हो. तो वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया, आई एम एन एस्केपिस्ट, आई हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स लिविंग इन द सिटी, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, बट वाई डिड माई फादर हैड दिस हॉबी. और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसको भी क्यों थी ये हॉबी? उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं थी ना. तो ये वो पॉइंट अपना रेज करता है. चार्ली की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चों, चेक कर लेते हैं. चार्ली सो एनग्रोस्ड विद फिक्शन दैट ही लूजेस हिज टच विद रियलिटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. he was so engrossed with his fiction, he was so engrossed with his fictitious life that he loses his touch with reality. He believed only in the existence of third level. डे टू डे लाइफ को वो अलग समझने लगा था, उसे लगता था थर्ड लेवल है, और वो इतना फिक्स हो गया था कि वो थर्ड लेवल के लिए पूरी करेंसी निकाल कर उसको चेंज कराने पहुंच गया. एंड इवन आफ्टर सो मैनी मंथ्स ही ट्राइड टू फाइंड आउट द थर्ड लेवल अलॉन्ग विद हिज वाइफ. तो ये भी एक इशू है. ठीक है बच्चों, अब आपको इसको सारी स्टेटमेंट के साथ बताना पड़ेगा, कैसे चार्ली वहाँ गया, कैसे उसके फ्रेंड ने बताया, और अल्टीमेटली उसका फ्रेंड भी ये बोलता है. और यही इसी तरह का क्वेश्चन नीचे वाला है, हाउ डज द स्टोरी इंटरवीव फैंटेसी एंड रियलिटी. दोनों ही चीज़ें इसके अंदर इंटरवीव की हुई हैं. देर आर सम पार्ट्स विच प्रूव दैट द स्टोरी इज़ रियल, वाइल देर आर सम थिंग्स विच प्रूव दैट द स्टोरी इज़ दैट द पार्ट्स इन द स्टोरी आर फुल ऑफ फैंटेसी. ठीक है बच्चों, आप फैंटेसी में क्यों रहना चाहते हो? फैंटेसी गिव्स एन एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी. आपका मूड ख़राब हो रहा है और आप कोई अच्छी फैंटेसी वाली मूवी देख लो, तो आप उससे अपने आप को कनेक्टेड फील करते हो थोड़े टाइम के लिए. आपको लगता है, अगर सपोज करो हीरो है, अगर हीरो को कोई चोट लगती है या कुछ लगता है तो आपको बुरा लगता है, बिकॉज यू फील कनेक्टेड विद दैट कैरेक्टर. आप उसके साथ कनेक्ट फील करते हो. ठीक है, और वो कुछ अच्छा करता है तो आपको प्राउड फील होता है. तो यही है बेटा स्टोरी के अंदर भी, फिक्शन और रियलिटी दोनों आपस में इतने ज़्यादा इंटरवोवन है. ठीक है बच्चों, थीम स्टोरी की यही है बेसिकली कि कैसे आप अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में एस्केप ढूंढते हो. स्पेशली द लाइफ दीज डेज हैज़ बिकम मोनोटोनस, द लाइफ दीज डेज इज़ इनसिक्योर, फुल ऑफ वरीज, फुल ऑफ फियर ऑफ वॉर, फियर ऑफ डिजीज़. उसकी वजह से लाइफ में जो प्रॉब्लम है, तो यू नीड अ सोलेस, you need an escape, a medium of escape. ठीक है बच्चों, still if you have any query, if you have any doubt, you can ask me in the comment box section. ठीक है बच्चों, that's all for today. We'll meet again with some new chapter. Bye.